So right, so we are starting operations management and strategic management now. Okay, so this is your group 2 subject of CMA intermediate and is a very scoring subject. Okay, so it is basically made up of 2 parts. जो आपका ये होता है, ये basically 2 parts का होता है. One is operations management, another one is strategic management. ठीक है. So आपका जो operations management OM part is of 70 marks. Okay, and your SM is of 30 marks. SM is purely a theory. Okay, so OM is purely statistics. Okay, but in OM also, you can be asked, normally you are asked 15 to 20 marks of theory. Okay, and these theories are normally easy if you have already done the practical part. So it's only some inferior question about some practical part. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे जो OM है वो 70 मार्क का होता है, 70. SM जो है वो 30 मार्क्स का है. SM प्योरली थियोरी होता है, बहुत लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है वो. ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना लाइवली हो सके उतना लाइवली बनाएंगे. ठीक है, और इसके SM में नोट्स भी बहुत बड़े पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि थोड़ा तो बोरिंग साइड होने के कारण नोट्स को थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करना पड़ता है SM में. ठीक है, तो SM में मेरे ख्याल से आप बस थोड़ा रेगुलरली थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो आप 30 में से 20 आराम से ले पाएंगे. ठीक है, वही टारगेट अपना SM का रहना चाहिए. OM में जो है आप अच्छा मेहनत कीजिए, स्काई इज द लिमिट. अगर पेपर बिगड़ भी गया आपका तो यू कैन स्कोर दैट 20 एंड एटलीस्ट यू विल लिव टू फाइट अनदर डे. ओके, OM तो इतना तो आप रेगुलरली क्लास कीजिए अच्छे से और थोड़ा मेहनत करेंगे तो OM में बहुत ज्यादा भी टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, कम से कम पासिंग आपका गारंटीड रहेगा. राइट, और अगर प्रॉब्लम्स वगैरह थोड़ा अच्छा जम रहे हैं आपको तो आपको काफी हाई मार्क्स मिल सकते हैं इसमें. तो ये है आपका OM एंड SM. और हमारा जो पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, दिसंबर 2021 का, वहां ये जो 70 मार्क्स, ये लिमिट को थोड़ा इंस्टीट्यूट ने एडहियर नहीं किया था, तो काफी ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे. तो इस बार काफी एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये लिमिट्स जो है एडहियर होंगे करके, यानी इसके अंडर में आपके पेपर्स बनाए जाएंगे. ठीक है, इन एनी केस थोड़ा सा आगे पीछे हो भी जाता है ना, तो आपके सच परफॉर्मेंस में उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, तो उतना आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. जस्ट ये सोचिए कोर्स प्रिपेयर करना है और आपका बेसिक जो है आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए. स्टडी मटेरियल से कोर्स प्रिपेयर करना है, ये सोच के चलिए आप, ये सब्जेक्ट में आराम से आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. So here, what I said is, in OMSM, study material is your key material. Okay, prepare through using your study material, and everything will be fine. Right? There's little bit of change in this also, deviation, which I don't think will happen again because there was lots of hue and cry last time. So even if it happens, it will not affect you really. Okay, it will only be little trifling change. Okay, so this is our lecture 1, and let's start with the topic now. Okay, so now first thing is I'll just tell you 2 concepts before we start with this introduction. One is, what is operations management? Okay, and what is production management? See, in the past, what happened is, what used to happen is, operations management basically were the front end people, office part people. Okay, the front end people, these were the people who were normally in touch with the customers and all that. Production management were basically the plant level people, okay, who used to produce. And normally the powers of the plant head and the head here, okay, they were parallel.
normally in the past. So plant head used to have an equal position, okay, as per when you compare him with the operations part of it, right? So how things used to happen earlier on. We are talking about the 18th century, okay. 18th century में जब कुछ ऐसा होता था, ठीक है, जब आपको प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट था वो प्रोडक्शन करता था, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला दो वर्ड्स आपको सीखने हैं। पहले है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जो फ्रंट एंड होता था, पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, यानी 18th सेंचुरी वगैरह में ये सेटअप होता था, वो उससे पहले या तब। और जो एक होता था प्लांट का साइड होता था, जो उनका प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन एरिया पूरा अलग हुआ करता था, ठीक है। तो इन लोग क्या करते थे, इन लोग प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, इन लोग प्रोडक्शन करते थे। मान लीजिए आपका कूलर्स बनाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो ये बनाएंगे 10,000 कूलर्स बना देंगे। Suppose they are manufacturing coolers and say they have produced 10,000 coolers. After this, these people will try to sell these coolers, okay. They might sell all, or they might be able to sell only 50%, correct. Then they would keep the rest as stock that would be sold next time, ठीक है। इस तरह से होता था, ओके। दिस इज द ट्रेडिशनल सेटअप, ठीक है। ये तो समझ गया आपको, बहुत सिंपल है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, 18th सेंचुरी में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ आपका। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत ऐसे इक्विपमेंट्स आने लग गए जो मास प्रोडक्शन करने लग गए। बहुत सारे मास प्रोडक्शन करने लगकर बहुत सारे कंपनीज कंपटीशन में आ गए, और काफी जगह ग्लोबलाइजेशन हो गया। इंडिया में तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन काफी जगह ग्लोबली सेल होता था, काफी कंट्रीज वगैरह में, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया, कंपटीशन जो है कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया, राइट। तो अब अगर ये वाला फॉर्मेट अगर चलाएंगे, कि मैं बोल रहा हूं मैं 10,000 बना दिया, ठीक है, और मैं बिक रहा है मेरा सिर्फ 5,000, ठीक है। बना तो दिया मैंने 10,000, लेकिन ये लोग 10,000 बेच पा रहे हैं। अब अगली बार फिर से 10,000 बनाऊंगा, नहीं तो मेरा कैपेसिटी आइडल रहेगा ना, मैं कैपेसिटी विल बी आइडल, तो फिर से 10,000 तो बनाना पड़ेगा अगले पीरियड में मेरे को, नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। और अगले बार सपोज मेरा सिर्फ 2,000 बिका, तो जितना भी जो स्टॉक जो मेरा ये हो रहा है, परसेंट नहीं 2,000 है, ओके। तो जितना भी बेसिकली 2,000 है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा था, इससे क्या हो रहा है कि अब यहाँ हमको क्या दिखाई देता है, ठीक है, ये केस से इनके और इनके बीच में कोई डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है, आइदर दिस वे और दिस वे। इसीलिए क्या हो रहा है, ये बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इन लोग बाद में डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये कितना बेच सकते हैं, ठीक है। इससे ओवरऑल जो है लॉस मेकिंग पोजीशन बन रहा था, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि जितना हम बेच सके हम उतना ही बनाएं, और हमारा कैपेसिटी भी हम उतना ही रखें जितना हमारा डिमांड है। समझ रहे ना? ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक पॉइंट हियर। सो see, if I prepare 10,000 coolers and I'm able to sell only 5,000, then other 5,000 will go waste, right? So every time I have to prepare 10,000, or I'll not be using my capacity to the fullest. That is also a loss. You're getting the point? Okay, so this was the problem. So it was very important that you first determine how much you can sell. First determine how much you can sell and then produce, and invest in your production capabilities accordingly. Okay, so this was the key takeaway for the modern operations management to come in. ठीक है, तो यहाँ पे तो इसीलिए पहले जो ये होता था, ये इंडिपेंडेंटली बनाते जाते थे, ये इंडिपेंडेंटली सेल करते जाते थे। तो जब कंपटीशन बढ़ा तब ये जरूरत हुआ कि पहले जो है ये डिटरमाइन हो, और ये जो पार्ट है ये इनको कंट्रोल करे, ठीक है। तो इनका जो लेवल थोड़ा हाई रखना जरूरी था, क्योंकि क्या बेचेंगे हम वो पहले डिटरमाइन करना जरूरी था, और ये जो बोलेंगे उतना ही इनको बनाना, अपने मन से नहीं बना सकते,
ठीक है। सो दिस लेड टू योर ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी जो हम जिसको पहले पहले आप जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते थे, पूरी चीज को पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोला जाता है, आज जो हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं, अभी जो करेंटली ऑपरेशंस मैनेजमेंट टर्म यूज होता है आपका, ये फ्रंट एंड है, ठीक है, विच इज मोस्ट पावरफुल, ठीक है। अब ये फ्रंट एंड जो है ये इसको कंट्रोल करता है, आपके बैक एंड ये इसको कंट्रोल करता है। तो आपके ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या क्या आ गया, आपका सारा ऑफिस ऑफिस जो कहाँ ऑफिस डालना है वो डिसीजन सब कुछ जो है, सोचना, जहां आप सोचना चालू करते हैं कि मैं किस स्टेट में फैक्ट्री लगाऊं, वहां से चालू हो जाता है आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। और एंड होता है आपके प्रोडक्शंस। तो इस तरह इसको कोऑर्डिनेट इस तरह से किया गया कि इनके पास पूरा पावर आ गया, ठीक है। एज सच सेटअप हैज नॉट चेंज्ड, इफ यू सी सेटअप इज द सेम, बट यू नो the powers have changed. Now operations management, this is the part where you have got very high level managers, okay, people from IIM and all that, okay. So they are more or less the brain now, okay, and they will determine what is to be produced and then they will tell them. This is what has happened in the modern operations management. So earlier times you might hear the name production management, which is used more or less like operations management. So production used to function independently at that point of time, okay. But अब जो है operations management term use करते हैं। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। अब हम आपका इसमें जाएंगे, ठीक है, विल गो टू योर टेक्स्ट नाउ। तो इसको जो है, जो मैंने ये भूमिका आपके सामने रखा है, इसको देखते हुए आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि हम वो क्या है करके, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस भी लेंगे आपका। तो चलिए सर देख, बोलिए आमिर। सर जैसे फ्रंट एंड जो भी अगर कैपेसिटी बताएगा उसके हिसाब से प्रोडक्शन मैनेजमेंट को उस तरह का क्या बोलते प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कुछ आइडियल तो फिर बचा ही रहेगा ना, जितना वो कैपेसिटी है उसका उसके हिसाब से नहीं कर पाएगा वो भी इसमें भी। स्पेयर कैपेसिटी बोल रहे हैं ना आप, तो इसीलिए जो है, तो क्या करेंगे, जो स्पेयर कैपेसिटी के लिए वो क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आमिर आमिर's point is that if they do not produce the whole thing then still some capacity will be wasted, ठीक है। तो बेसिकली कितना कैपेसिटी हमको जरूरत है वो भी ऑपरेशन से डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका जो रिडंडेंट चीजें हैं, ठीक है, आपको सपोज आपका डिमांड है कि आप 50% ही आप बेच पाते हो, ठीक है, आपके जो एसेट्स है उसके 50% ही आप यूज कर पाते हो, तो बाकी 50% रख के क्या फायदा है ना। तो उसको ऑफलोड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑफलोड करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना इन्वेस्ट हम करेंगे हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज में, वो भी इन्हीं का डिसीजन होता है, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ, जब कहाँ आप फैक्ट्री डालेंगे वहां से इनका डिसीजन चालू हो जाता है, तो कितना बनाएंगे तो बात की बात है, ठीक है। आमिर, डिड आई यस आंसर योर क्वेश्चन? यस सर यस। ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, okay, it's management of that part of the organization which is responsible for producing goods or services, okay. So finally this means that you know the front end part of the organization, okay. So if you see, if let us say your talk about your pizza shop, any, what is it called, Domino's, okay, Domino's pizza। so Domino's का जो आपका जो वेबसाइट है वो है आप उसका ऑपरेशंस मैनेजमेंट पार्ट। तो वेबसाइट में सब ऑर्डर आ रहा है, जैसे ऑर्डर आता है वेबसाइट के थ्रू उनके प्रोडक्शन, जो उनका प्रोडक्शन है ना, कुकिंग हो गया है ना, तो वेबसाइट के थ्रू फिर वो राउट होगा उनके प्रोडक्शन को, और इस तरह से बैकएंड में बहुत सारी चीज होगी, वो हमको नहीं दिखेगा, वो बस बोलेगा हाँ ऑर्डर टेकन, बोलेगा आपको आधे घंटे में हम दे देंगे, बोलेगा, ठीक है। वो बोलेगा कि हाँ कुकिंग हो रहा है, ये हो रहा है, आपको ऐसे बोलते रहेगा वो, जो भी ये है। तो इस तरह से जो है ना, जो फ्रंट एंड जो आपका वेबसाइट है वो पूरा बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। तो जो आपको जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो 80% ध्यान उसी में रहेगा। पीछे भी देखेंगे वो लोग कि हाँ क्वालिटी ठीक हो रही है क्या नहीं है, प्रोडक्शन पार्ट भी देखेंगे वो, बट सबसे पहला आजकल कस्टमर सबसे आगे हो गया, ठीक है।
It's management of that part of the organization responsible for producing goods or services. So that's why every email you send, every telephone conversation, तो जो जिस चीजों की कंपनी है उसका जो फ्रंट एंड प्रोडक्ट वो देते हैं वो उनके ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मेन पार्ट हो जाती है. ओके, तो यहाँ इसके बाद from here we'll talk about to know operations management we should know operating systems. ठीक है, so here I will take an example. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको operations management और operating systems जो है. Yes, Murli. So which one you are seeing? Amir's question or which explanation you are referring to? Yeah, hello Murli. Yeah, Amir's question. Okay, so see, his question was, what he's asking is that he's saying, I told that set 10,000 coolers have to be manufactured, correct? But now demand is only for 5,000. So he is saying, okay, if operations come and they are saying now manufacture only 5,000, then what about my spare capacity here? Anyway, it is getting wasted. So that was his question. So the answer to that was that if the demand is less, then what operations will do is they will offload their assets. They will not maintain assets to create 10,000 coolers. They'll sell off what is not needed. Okay, so the investment will be reduced proportionately. So that part will be decided by the operations. Okay, that was that question. So, okay, operations management and operating systems. We will pick up pace in this subject. ठीक है, इसमें हम speed automatically पकड़ लेंगे. Subject छोटा है तो हम लोग we can afford to go slow. ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है. बस ये subject ऐसा है कि आपको ये completion में problem नहीं जाता है subject में. ठीक है, तो आराम से करेंगे, but भी starting part है, फिर automatically pace pick हो जाएगा हमारा. अब बात करेंगे operations management and operating systems. Okay, so okay, let's take the example of a barber shop. Okay, although he gives services, but it's a good small example. So now barber here is the key operations manager. Okay, he's managing his own operations. He's the key operations manager, right? So now for barber to function, what does he need? He needs his barber shop, correct? He needs his cutting shop. And with the shop, what will be there in shop? Mirror. Okay, other whatever is shaving cream, whatever, all those things. Okay, hair dye, hair color, whatever. Okay, colors, all things he will have. Okay, so this thing, no, the barber is using this setup, right? तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि बार्बर शॉप का एग्जांपल ले रहे हैं हम. तो यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजर कौन है? वो खुद बार्बर ही है. ठीक है, तो उसके दुकान में क्या क्या रहता है? एक दुकान है, करेक्ट, फिर उसमें वो आईना, वो चेयर्स वेयर्स जो उनके स्पेशलाइज्ड रहते हैं वो सब चीजें लगाएगा. ठीक है, मिरर वेरर जो भी है, चेयर्स, ऑल दोस थिंग्स. तो ये जो चीज है ना, आपको ये जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ, ठीक है, इन द ब्लॉक विच आई एम शोइंग यू, ये ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये सिस्टम को यूज करके आपका ऑपरेशंस मैनेजर कस्टमर को सर्विस दे रहा है. ठीक है, तो कस्टमर आएगा तो आपका जो बार्बर है, ठीक है, ये बार्बर क्या करेगा? इस सिस्टम को यूज करेगा. एक मिनट, बार्बर इस सिस्टम को यूज करेगा. ठीक है, यूज करके जो है यहाँ कस्टमर को सर्विस देगा. ठीक है, यहाँ कस्टमर है, समझ लीजिए. ओके, दिस इज यहाँ पे कस्टमर मान लीजिए. ओके, सो दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना. इसके जो रिसोर्सेज है उसको सब एक साथ लाया है, जिसको यूज करेगा सर्विस देने के लिए. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट?
So let us now see this part. यहाँ पे देखेंगे operating system configuration of resources. Okay, combined provision of goods and services. ठीक है, बार्बर शॉप का एग्जांपल, जैसे many retail organizations जो भी आप ये सब देखते हैं, क्या बोलते हैं, your big bazaar, all those things, no? Okay, they have a configuration of resources, correct? They used to give services. Hospitals, very good example. Who is the customer? Patient is the customer, right? Bus and taxi services. So everyone, tailors. So tailor is like very close to your barber, correct? Tailor shop and barber shop, you can compare. Low end operating systems. Hotels, dentists again, because he has some specific equipment. Using that system, he gives you service. Okay. So what does an operating system do here? ठीक है, ये समझ गए ये बात? I don't think रिपीट करने की जरूरत नहीं, हमने बात कर ली है ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है क्या? इनपुट्स को, ठीक है? और कैसे कन्वर्ट करता है? वो यूज करता है अपने फिजिकल रिसोर्सेस को और आउटपुट क्रिएट करता है। तो बार बार कि इसमें क्या इनपुट है? बाल जिसके बड़े हुए हैं, वो जो क्लाइंट आ रहा है वो इनपुट है। फिर उसको बाल काट के एकदम परफेक्ट बना के when he goes out, that is the output. And to make that output, what he is using his shop. ठीक है, ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एम एक ही होता है। आप वो रिलायंस को ले लीजिए, सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, या एक छोटे बार्बर शॉप को ले लीजिए, वो सब चाहते हैं अपने कस्टमर को के वांट्स को सेटिस्फाई करना। दे वांट टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स वांट्स। ओके, one moment. Okay, just one question for you, like are you able to read this chat which I am seeing now? Does it appear for you? Chat messages दिखता है क्या आपको? नहीं ना? No, okay, ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन है सर, does production of plastic bottle? Yes, Sanjana. So production of plastic bottle bucket, that production will not be a see, if you are producing, say your topic is production of plastic bucket. Okay, now for production, what he'll need, you will need a specialized factory, correct, with all the equipments, right? And factory and all its the layout needed and all that, all these things, no? This will be your operating system. Okay, your layout factory will become your operating system. And what you will do is, your raw material here, the raw material will be your plastic. Okay, molten plastic or plastic will be your raw material. Then you will use this production, this operating system. So this is your system. So basically, what is the system which you are using to convert your raw material? Okay, that's how you have to think. So this layout and your factory, this will be your operating system there, right? And then what will be your finished product finally? It will be your plastic buckets. Okay, what will move out is your plastic buckets. Okay, so right, so one minute. Okay, thank you. So right, so the aim is to satisfy customer wants. We were here, correct? So what are the inputs? See, inputs is capital. Capital is basically to create a factory, I'll have to put capital, right? Then I need some labor, they will transform it. And information is like, information is required to really know how much you have to produce, or even like where you will get raw material at cheap price. All this will be information. Okay, so you use capital, labor plus information, capital plus labor from information. This becomes your input, and you create goods and services, okay, using transformation process. So transformation process is what? When you are manufacturing something in a factory, that is a transformation. Okay,
loosely. So normally we talk about operations management from a manufacturing point of view. Okay, but the same is applicable to service as well. The thing is now, because you have got advanced SAP and these tools and all, which have been prepared for operations, they have got many detailing of operations. If you buy the same for service, it will be a waste of money. Okay, which is why for service we don't buy the same systems which we buy for operations. Okay, but from a flow point of view, if you see, both are very similar. Okay, so transformation process, transformation also in barber shop you can say, right? The customer gets transformed at the end. Okay, so, but okay, let's now focus to the manufacturing side, towards the manufacturing side. So here inputs such as capital, labor and information, okay, are used to create your final product here. Okay, and what is used? Transformation processes like storing, transporting, cutting, your factory processes. That's what it's talking about. Okay, so along with this, what is important? ठीक है, तो ये समझ गया आपको, हिंदी स्टूडेंट्स को भी ये तो क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आप ये इनपुट्स को यूज करते हैं फैक्ट्री में और हम आउटपुट बनाते हैं, है ना। और क्या करते हैं इसमें, जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में की क्या है ना, की है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, जैसे फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है, ठीक है, इसकी और इसको देखते हुए ये सब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर्विस में इसका एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इसको बनाया इसके लिए गया है, ठीक है। इसका ओरिजिनेशन ही आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, जो फैक्ट्री के ऑपरेशंस होते हैं ना, वो उसको बोल रहे हैं लोग, सबको एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नाम दे दिया। और फिर जो है हमको नेक्स्ट टाइम मेजरमेंट लेना पड़ता है कि फीडबैक, फीडबैक वर्ड आपने बहुत सुने होंगे, ठीक है। तो हमको ये लगता है कि जब कस्टमर फीडबैक देता है तो वही फीडबैक है करके, नहीं, फीडबैक आपके एम्प्लॉयज भी दे सकते हैं, ठीक है, आपके कस्टमर्स भी दे सकते हैं, मैनेजर्स भी इक्विपमेंट कैसा काम कर रहा है वो ठीक है कि नहीं है उसके ऊपर फीडबैक दे सकता है, ठीक है। तो फीडबैक कैन बी फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, ऐसा नहीं कि कस्टमर ही बोलेगा कि नहीं काम ठीक नहीं हुआ है, okay, just the customer complaining is not feedback, okay, there can be several ways of feedback. So but feedback is a measurement, definitely in any case you are taking measurement whether your product is up to the mark or not, so to compare with previously established standards, right, to see that product is up to the mark or not. feedback मतलब feedback में क्या देखते हैं कि जैसा हमने टारगेट सेट किए थे वैसे फिनिश प्रोडक्ट बना कि नहीं, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है उसको फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक अगर मिल गया कि नहीं ये ठीक नहीं बना है, जैसे हम सोचे थे नहीं बना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेक्टिव एक्शन लेंगे, तो वो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, तो वो कंट्रोल प्रोसेस में आता है। तो कंट्रोल प्रोसेस जो है हमेशा प्रोडक्शन के पैरेलली चलता है। क्यों पैरेलली चलता है? एकदम जो फ्लो वाइज हम उसको आखिरी में बताते जरूर हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोसेस में अगर आप पूरी गलती होने तक रुके रहेंगे अगर, ठीक है, फिर पता चला तो इतना टाइम एनर्जी प्रोडक्ट सब वेस्ट हो गया ना, तो इसीलिए फीडबैक बीच बीच में लेते रहना जरूरी है, कुछ गलती हो रहा है वहीं आपको करेक्ट करना, ठीक है। तो कंट्रोल नॉर्मली रन्स पैरेलली, कंट्रोल रन्स पैरेलली, ओके, अदरवाइज the whole thing will get completed. You have spent 6 months in producing something and now that is not correct. So it's always better to do that control every now and then, correct, in regular intervals. Last part बस इतना एक चीज याद रखना है आपको इम्पोर्टेंट, गुड्स और सर्विसेज जो है ना वो नॉर्मली ज्वाइंटली होते हैं। जैसे आप अगर पेट्रोल भरने जा रहे हो तो आपको जो पेट्रोल भरने वाला तो खड़ा है ना वो सर्विस दे रहा है आपको, तो आप हर चीज में ऐसा गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि अगर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं आएगा तो जो गुड्स है आपका जो इनएनिमेट है, मतलब जिसको जान नहीं है, वो आप तक जाएगा कैसे? एक ह्यूमन एलिमेंट रहेगा तभी तो आप तक जाएगा ना। तो इसीलिए गुड्स और सर्विसेज ज्वाइंटली होते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आपका 5% सर्विस हो, कहीं 95% गुड्स हो, या कहीं अदर वे अराउंड हो सकता है, ठीक है। गुड्स सिर्फ 5% है, ठीक है, पूरा सर्विस। आप जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं कि अगर सपोज आप बार्बर का एग्जांपल ले लीजिए ना बेस्ट, कि आप सिर्फ थोड़ा सा ट्रिम करने के लिए गए हो तो उसने कुछ भी यूज नहीं किया, आपने कोई भी गुड्स यूज नहीं किया, बस वो कैंची यूज किया, थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, आपने उसको 50 रुपीज दे दिए, ठीक है। कैंची के यूज किया और कितना आप 2 रुपए लगा लो, बाकी 48 रुपीज पूरा उसका है ना।
So 48 rupees is service, 2 is goods here. Okay, right? So what I said is like they offer jointly, but the percentages will differ. Okay, remember that. Like it can be 5% service, 95% goods, can be vice versa. Right? If I take that cutting example, you are going for 50 rupees cutting. We went for just trimming a bit. Okay, he used a scissor. He didn't use any other material. So you can say that towards the scissor you will allocate say 2 rupees. That he used that. Okay, all 48 is his service charge. So this is an example of high level of service, very few goods. It can be both ways. Okay, ठीक है. तो अब तो ये एक पॉइंट है. यहाँ पे चलिए अब क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारे पास अभी 5 मिनट हैं. बोलिए आमिर. सर OM फुल्ली सर्विस पर लग सकता है, सर्विस सेक्टर पर. क्या बोले आप, फिर से रिपीट कीजिए. सर जैसे OM में गुड्स एंड सर्विस दोनों रहता है. हाँ हाँ, दोनों रहता है. ठीक है, तो सर ओनली सर्विस सेक्टर के लिए मतलब OM अप्लाई होता है क्या? देखिए, जो एज अ कॉन्सेप्ट जो है ना, जो आप जब OM का कॉन्सेप्ट बोलोगे, ठीक है, OM का जैसे हमने अभी इसमें देखे हमने, ठीक है, कटिंग के दुकान में हमने देखे, तो OM का कॉन्सेप्ट पूरी तरह एप्लीकेबल होता है. ठीक है, तो जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एज अ कॉन्सेप्ट आपका गुड्स में भी एप्लीकेबल होता है, सर्विस में भी एप्लीकेबल होता है. इट इज OM कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन बोथ, बट द टूल्स ऑफ OM जो है ना, OM के लिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं. एक एग्जांपल है SAP. ठीक है, तो जो आप गुड्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोज आप पैकेज लेते हो, एक पैकेज वो होता है, मान लीजिए आपका 5 lakhs का पैकेज, उसमें पूरी डिटेलिंग होती है कि कहाँ आपको स्टोर करना, सप्लाई चेन, ये वो सब रहता है. अब आप सर्विस इंडस्ट्री के लिए अगर ये लेने जाओगे तो इसमें अगर आपके 100 ऑप्शंस है, ठीक है, आप सर्विस इंडस्ट्री में सिर्फ 5 ऑप्शंस यूज करोगे, तो उसके लिए आप 5 लाख क्यों दोगे, है ना. तो आप एक छोटा सॉफ्टवेयर लोगे जो आपके 5 ऑप्शन आपको दे रहा है. समझ रहे ना. तो जो इसीलिए जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में बस डिफरेंस है कि OM मैन्युफैक्चरिंग में जो हाई एंड टूल्स यूज होते हैं ना, सर्विस में उतने हाई एंड टूल्स यूज नहीं होते, इसलिए ये थोड़ा अलग टाइप के टूल्स यूज करते हैं. लेकिन जब फ्लो की बात आप करोगे, अगर फ्लो बिल्कुल सेम. ठीक है, ओके सर. और कोई क्वेश्चन किसी का, एनी अदर क्वेश्चन? लिटिल ahead I can go, थोड़ा सा जो है. Now we'll talk about operations, objectives of operations management. Okay. Hello. Yes, Murli. Yes. So can you repeat that operation system and operational management? Operations management and operating system. Okay. So I'll tell you by an example. Okay. So it will be very, very clear for you. So let's take an example of a barber shop, which is a small thing, or a factory, which is a large thing. Okay. A big factory. Okay. So in barber shop, so whatever resources is using to give you services, okay, this is your operating system. Okay, for barber. Okay. And who is the operations manager? Barber is the manager. So that he is in charge of operations management. Now, if you take the same example to a bigger factory. Okay. Let us take the same example to a bigger factory. Here you will have operations managers. Okay, it's almost the very high level, but these are also middle level managers. Okay, these are middle level managers. The topmost level of managers are strategic managers, which come in your strategic management subject. This is the topmost management. Okay, so under this you have these operations manager, which will be middle level management. So this is our subject now. So okay, factory. So in this factory, you will have what will you have in factory? You will have machines, tools, okay, laborers, okay, and let us say some professionals also are needed. So all this together is your operating system here. This is your operating system, okay, and these are your operating managers. Similarly, for barber shop,
This is your system. Barber is your manager, operations manager. Got it? So we'll close it now. And thank you very much. So please join me tomorrow again. And now for law students, 8:30 law will start. Okay. Thank you.